This is Dr. Danish. Today we will proceed further in chapter 2nd. Actually, we have completed the explanation of chapter number 2nd up to the page number 19. So we will proceed from the chapter number 20, and here you can see that the activity 2.3 is highlighted. So first of all, I read this activity and then I will tell you what happened in this activity, what is the main idea beyond this activity. Okay, so in this activity, take half kg flour, it means atta or maida, add some sugar and mix with warm water. Add a small amount of yeast powder and knead and make a soft dough. ठीक है. So what do you observe after 2 hours? Did you find the dough rising? Actually, when we prepare dough in our houses, so if we do not use the yeast powder, actually this is yeast powder is for the fermenting this flour. Okay, so this yeast powder is being used here for fermenting the फ्लोर. ओके, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपने डो ले लिया आधा हाफ के जी, उसमें पानी मिलाया है, पानी मिलाकर इसमें उसको गूँथा है, जैसे आटे को गूँधते हैं गूँधा है. ठीक है, और फिर इसमें ईस्ट पाउडर मिला दिया और काफ़ी देर तक आप इसे छोड़ देंगे कुछ आवर्स के लिए. तो छोड़ने के बाद आप क्या देखेंगे कि जो डो है, ये जो फ्लोर है, ये डो है, इसका जो लेवल है ये राइज अप हो जाएगा, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. सो दिस प्रोसेस इज ड्यू टू fermentation. Okay, actually yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide during the respiration. So, and this kind of respiration is known as anaerobic respiration. Bubble of the gas will fill the dough and increases its volume. तो राइस क्यों होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड के जो बबल्स होते हैं वो डो में ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो डो का जो लेवल है वो राइज अप कर जाता है. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया. और ये जो पूरा प्रोसेस है ये फर्मेंटेशन कहलाता है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, एंड ईस्ट इज अ kind of a single eukaryotic cell which belongs to fungi. So yeast is a kind of fungus. So commercially use of microorganism, commercially use हम कैसे करेंगे? Actually large production of alcohol, wine, acetic acid mean vinegar. ठीक है, yeast is used for commercial production of alcohol and wines. ठीक है, तो जब भी हमको लार्ज स्केल पे इन एल्कोहलिक बेवरेजेस का प्रोडक्शन करना होता है, वी हैव टू यूज़ ईस्ट, एंड ईस्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज, इज ऑल्सो नोन एज ब्रूअर ईस्ट. ओके, तो इसमें यहाँ पे बार्ले है, वीट है, राइस है, क्रश्ड फ्रूट जूसेस हैं, इन सब में वी विल हैव टू यूज़ ईस्ट फॉर anaerobic respiration, and another term for this is fermentation. And what will be the product of fermentation? The product will be the alcohol, C2H5OH, and carbon dioxide. So now we focus on activity 2.4. Here take 500 ml beaker filled up to 3/4. ठीक है, अप टू 3/4 विद वाटर, डिजॉल्व 2 to 3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, एड हाफ a spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in warm place for 4 to 5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell? So इसमें जो स्मेल आएगी, this kind of
this kind of solution would smell like alcohol. Okay, and this process would be the fermentation. Here the smell of the alcohol as sugar has been converted into the alcohol by yeast, and this process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक साइंटिस्ट भी यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है, लुइस पास्चर. ही इज़ लुइस पास्चर हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ fermentation in 1857. It's clear? Now we come on the medicinal use of microorganisms. Actually, source of different microbes are the source of different medicines, antibiotics. ठीक, और इसमें से कौन सी आजकल एंटीबायोटिक यूज़ हो रही है? लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए क्या देख रहे हैं, हम बॉक्स में फिर से आ जाते हैं. बॉक्स में इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया. ठीक है, सो एक्चुअली ही वाज वर्किंग ऑन डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड ही वाज कल्चरिंग दीज बैक्टीरियाज इन हिज लैब. बट इन्होंने देखा क्या, सडनली ही फाउंड दैट द स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड. ठीक है, ग्रीन मोल्ड in one of his culture plate. He observed that the presence of a mold prevented the growth of the bacteria. तो ये एक्सीडेंटली हुआ कि जहाँ पे ये अपने बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे थे उसमें एक मोल्ड ग्रो कर गई, और जहाँ पे वो मोल्ड ग्रो हुई उस पूरी फील्ड में दैट मोल्ड वैनिशेस द होल कॉलोनी ऑफ द बैक्टीरिया, और वहाँ की जो पूरी बैक्टीरिया की कॉलोनी थी वो ख़त्म हो जाती है. एंड देन ही कंक्लूडेड दैट ड्यू टू सम सिक्रीशंस फ्रॉम दिस मोल्ड इट हैपेंड. ठीक है, ये क्यों हुआ कि इस मोल्ड ने कुछ सिक्रीट किया जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया की ग्रोथ थी वो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो गई. ठीक है, अब हम आ जाएंगे और ये डिफरेंट एंटीबायोटिक्स कम्स फ्रॉम एंड द सो इट मीन्स द सोर्स ऑफ डिफरेंट एंटीबायोटिक्स आर द फंजाई एंड द बैक्टीरिया. ठीक, सो नाउ वी फोकस ऑन दिस सेकेंड पेज. हेयर you see the antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. एक्चुअली जो हम करते क्या हैं कि एंटीबायोटिक को जब हमें किसी लाइव स्टॉक को देना होता है, पोल्ट्री को देना होता है, सो देन वी मिक्स दिस एंटीबायोटिक विद द फीड ऑफ दोज पोल्ट्री. ठीक है, और इस तरह से वो एंटीबायोटिक उनमें चली जाती है और वो कोई भी उनको जो डिजीज़ होती है वो उससे क्योर करती है. ठीक है, सो अब बॉक्स के अंदर देखते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली इन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर. एक्चुअली एंटीबायोटिक फ़ायदा तो बड़ा ही पहुंचाती है, पर इसको दो चीज़ें हैं जिसका हमें आपको कॉशन रखनी है. एक तो ये क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस पे ही लेना चाहिए. दूसरा जो है इट मस्ट you must have to complete the course prescribed by the doctor. डॉक्टर ने जितने दिन के लिए बोला है एंटीबायोटिक उतने दिन ही लेना चाहिए, ताकि जो कोई भी माइक्रोबियल जो आपके अंदर ग्रोथ हुई है, पॉपुलेशन है, वो कम्प्लीटली एरेडिकेट हो जाए और फर्दर उसमें कोई म्यूटेशन कॉज ना हो पाए. ठीक है, उसमें कोई रेजिस्टेंस डेवलप ना हो पाए. अब क्या है, ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरली एंड किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी. सो अगर आप देखिए लगातार रेगुलर कोर्स ऑफ इंटरवल पे एंटीबायोटिक को इंटेक कर रहे हैं तो क्या होगा, जो आपके पेट में, जो आपकी गट में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है दैट विल बी अफेक्टेड. ठीक है, वो उससे नुकसान होगा और वो ख़त्म हो जाएगी, और जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो एक पार्ट प्ले करते हैं आपके डाइजेशन में वो
नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब enters our body, the body produces antibodies. अब यहाँ पे we will focus on the vaccine. What exactly is vaccine? Okay, so when a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. ठीक है, जब भी कोई इन्वेडर हमारी बॉडी में, नॉन फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है और उसकी मेमोरी भी जनरेट करके रख लेती है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट विद द माइक्रोब्स, ठीक है। सो द बॉडी नोज हाउ टू फाइट, ठीक है। और इसमें दो तरह की एंटीबॉडीज़ बनती हैं, एक तो फाइट करती हैं, दूसरी जो सेल्स होती हैं वो उसकी मेमोरी बना के रख लेती हैं, है ना, जैसे मेमोरी बी सेल्स बोलते हैं। और जब भी कभी एक फर्दर आपको इन्फेक्शन कभी होता है तो ये मेमोरी सेल्स फॉरन एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकती हैं, या आपकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ जब ये रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है तो रह भी गई हैं और वो आपकी बॉडी को प्रोलॉन्ग उस आने वाले इन्वेडर से बचाती हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिस इज़ हाउ वैक्सीन वर्क्स। अगर आपको कोई वैक्सीन दी जा रही है तो वैक्सीन भी इसी तरह से काम करती है। जब आपकी बॉडी में वीक या डेड जो आपके माइक्रोब्स हैं, दे वर इनिकुलेटेड, वो आपकी बॉडी में डाले जाते हैं, एंड योर बॉडी मेक एंटीबॉडीज एज वेल, नॉट ओनली द एंटीबॉडीज़ बट ऑल्सो द मेमोरी बी सेल्स, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ तो ब्लड में जब रहती हैं तो वो फाइट सीधा करेंगी, पर कभी कभी ये होता है कि इसके नंबर एंटीबॉडीज़ का गिर जाता है, इन्फेक्शन बहुत लंबे टाइम के बाद हुआ, तो जो आपकी मेमोरी सेल्स हैं, देन दैट मेमोरी सेल्स विल प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज़ फॉर द फ्यूचर डिफेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एडवर्ड जेनर का यहाँ पे एक पिक्चर है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798, ओके। और आपने देखा है कुछ जो ज़्यादातर जो वैक्सीनेशंस हैं बच्चों को किए जाते हैं, वो जो होते हैं वो इंजेक्शन फॉर्म में होते हैं, इंजेक्ट की जाती है बॉडी में वैक्सीन। और पर कुछ वैक्सीन्स जो होती हैं, जो आप बहुत टाइम से आप देख रहे होंगे, पल्स पोलियो जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें जो पल्स पोलियो वैक्सीनेशन जो ड्राइव चलती थी, तो उसमें वो कुछ ड्रॉप डालते थे, 2 ड्रॉप्स डालते थे, है ना। तो अब जो है, क्योंकि ये पोलियो भी एरेडिकेट हो गया है इंडिया से, मालूम ये एश्योर हो गया है कि पोलियो हैज़ बिन एरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, है ना। और इसके अलावा अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. Smallpox भी eradicate हो गया है वर्ल्ड से, पल्स पोलियो भी हो गया है कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के। So these vaccines are made on a large scale from microorganisms, ठीक है, to protect human as well as the एनिमल्स। तो ये जो वैक्सीन के बारे में मैंने आपको बताया कि वैक्सीन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती हैं, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि एंटीबायोटिक्स भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती हैं। तो ये आज हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए कि व्हाट आर द मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें हमने वी हैव डिस्कस्ड द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक एज वेल एज द वैक्सीन्स, ठीक है। और ये दोनों के सोर्स कौन थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही थे। तो ये इसको हमने आज डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में वी विल मीट एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पेज एंड द टॉप एंड द हेडिंग वुड बी द इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प अस इन इंक्रीजिंग या इन इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, ओके। हम ये डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।